Today we are going to discuss magnetism. In order to understand magnetism, let's first define magnetism. What is magnetism? Basically, magnetism is the force of attraction, is a phenomena of the phenomena, and the phenomena is defined as the force of attraction or repulsion caused by the movement of charged particles. Now, here we are going to understand what is magnetism. For that, firstly, we have to keep in mind it's a phenomena similar to the electrical attractions, as we have already discussed the attraction or repulsion between two charged particles, whether the charged particles are moving or whether the charged particles are at rest. This phenomena is known as electrostatics. Now we are going to understand what is magnetism. Magnetism is basically the force of attraction or force of repulsion caused by the movement of charged particles. Keep in mind that there are few participants whom are charged, and these charged participants are always in movement. If the charged participants are at rest, then there will be no magnetism, there will be no force of attraction and force of repulsion in this case. And there is a slight difference that the charged particles that the phenomena is not due to the charge. This phenomena is due to the movement of the charged particles. Keep in mind, whereas in the case of electrostatics, we have discussed if whenever there is a charge, there is a force of attraction and there is a force of repulsion. But in this case, there is a slight difference, and the difference is that if there is the movement of charge, then the phenomena of magnetism is observed. Now, moving on towards what are the magnets. We already have seen magnets in our daily life, and magnets have multiple applications. Let's overview a few of the features we already knew about the magnets. Magnets, definitely we can say magnets have two poles, two ends. One is known as north pole and the other is known as south pole. As our earth got both these poles, earth has a north pole and south pole, so we can say our magnets both have south pole and north pole. Now, if we place a bar magnet, we are all familiar with the bar magnets. If we place a bar magnet on the table, it will automatically align itself in the earth's with the earth's magnetic field. It will align, as it will automatically point its south pole towards earth's south pole and north pole towards the north pole of earth. Magnet, what are the poles? Now, in order to understand magnet completely, let's discuss the pole. A magnetic pole is the region on a magnet which produces magnetic field. बेसिकली हमारे पास पोल्स क्या हैं, मैग्नेटिक पोल्स क्या हैं. मैग्नेटिक पोल्स बेसिकली अगर आप बात करते हैं कि एक आपने मेटल का बार लिया और वो मेटल बार जो है उसके अंदर एटम्स मौजूद हैं. हमने ये बात ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि जितने भी एटम्स हमारे पास मौजूद होते हैं, एटम्स आपके पास सॉलिड्स के अंदर कभी भी, लिक्विड्स के अंदर, गैसेस के अंदर एटम्स कभी भी रेस्ट पर नहीं होते. एटम्स आर कॉन्टीन्यूसली इन मोशन. तो जब एटम्स जो हैं वो मोशन में हैं, तो बेसिकली क्या है, दे आर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फोर्सेस. तो ये जो आपके पास एटम्स हैं, बेसिकली क्या किया आपने, एक अदद मेटालिक रॉड लिया, और उस मेटालिक रॉड को अगर हम कहते हैं कि एक अदद वो बार, मेटालिक रॉड क्या है, आपके पास एक अदद बार मैग्नेट है. तो उस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, डेफिनेटली वो अपनी तरफ क्या करेगा, एक दूसरे पोल को अट्रैक्ट करेगा.
तो ये जो दूसरे पोल को अट्रैक्ट करेगा, ये बेसिकली आपके पास क्या होगा, आपके पास एक पोल नॉर्थ पोल, अगर हम यहाँ पर एक बार मैग्नेट अपना बनाते हैं और बार मैग्नेट आप बनाना चाह रहे हैं, सपोज दिस इज़ योर बार मैग्नेट एंड दिस इज़ द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, दिस इज़ द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, हेयर इज़ एन अदर बार मैग्नेट। तो ये जो नॉर्थ साउथ पोल है, ये इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये साउथ पोल जो है ये आपके पास दूर रहेगा। तो बेसिकली ये जो रीजन ऑफ स्पेस, रीजन ऑन द मेटालिक बार था, इस रीजन ऑन द मेटालिक बार ने क्या किया, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट की। और कौन सी मैग्नेटिक फोर्स जनरेट की, इन दिस सर्टेन केस इसने ये जो आपका नॉर्थ पोल है इसको अट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, ये सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट की है। इसका कन्वर्स केस भी पॉसिबल है कि अगर आप क्या करें कि आप अपना बार मैग्नेट की नॉर्थ, आपके पास इसका कन्वर्स केस भी पॉसिबल है। एंड कन्वर्स केस क्या कहता है आपके पास, कन्वर्स केस कहता है कि आपके पास क्या है, एक अदद बार मैग्नेट और इसका यहाँ पर नॉर्थ पोल पड़ा है, और ये दूसरा बार मैग्नेट, इसका यहाँ पर नॉर्थ पोल पड़ा है। तो ये जो आपके पास मैग्नेट 1 है, ये मैग्नेट 2 के ऊपर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाने के नतीजे में क्या होगा आपके पास, कि आपके पास बेसिकली क्या हुआ कि ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे से अवे जाना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया जी। अब अगर हमने वही बात करते हैं कि अगर हम अपने मैग्नेट को, बार मैग्नेट को क्या करें, एक अदद बार मैग्नेट को हैंग कर देते हैं, तो इसके पोल्स ऑटोमेटिकली अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल के साथ अपने आप को अलाइन कर लेंगे। अच्छा जी, अब क्या कहते हैं, अब एक और फैक्ट जो ये बेसिकली हमारे पास जो पोल्स, ये जितनी डिस्कशन हम आज करेंगे, दीज आर द नोन फैक्ट्स फ्रॉम द हिस्ट्री। तो हमारे पास जितनी भी बातें हम आज कर रहे हैं ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं, इनके ऊपर डिस्कशन में हम लोग कोई न्यू बात नहीं कर सकते। मल्टीपल सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और इन सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये हमारे पास बेसिकली कंक्लूडेड फैक्ट्स हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट्स के बारे में एक और बात कही गई, और वो कही गई कि मैग्नेटिक पोल्स बिहेव सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस, बट देर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस। आपके पास अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक अदद पॉजिटिव चार्ज Q की, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज अकेला भी पड़ा हो तो आप इसके पास क्या करेंगे, कोई बाहर से चार्ज ला कर रखेंगे, आप यहाँ नेगेटिव चार्ज को लेकर आएंगे दूर से, तो दिस विल अट्रैक्ट इट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास, मैग्नेटिज्म में क्या डिफरेंस आता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि आपके पास अगर एक अदद बार मैग्नेट है, अगर एक अदद पीस ऑफ मेटल है और पीस ऑफ मैग्नेट है अगर, तो ये पीस ऑफ मैग्नेट आपके पास सिंगल कभी नहीं रहेगा। आपके पास हमेशा जो है बार मैग्नेट, जो पीस ऑफ मैग्नेट है, उस मैग्नेट के ऊपर दोनों पोल्स एग्जिस्ट करेंगे। इट इज़ कंपल्सरी। आपके पास यहाँ पे डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक अदद बार मैग्नेट था और उस बार मैग्नेट को क्या किया, उसने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। जब वो बार मैग्नेट को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा है तो एटम्स इनसाइड द मैग्नेट इस तरह से अपना बिहेवियर शो करेंगे कि वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक ब्रोकन पीस के ऊपर बना लेंगे। तो यहाँ से ये एजम्पशन की गई कि जो मैग्नेटिज्म है वो आपके पास सिंपल एक पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसके लिए मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशन भी दी थी बाद में, और मैक्सवेल सेड के मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैथमेटिकली एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज़ प्रूव्ड कि जब भी कहीं आपके पास एक अदद मैग्नेट होगा, आप उस बड़े मैग्नेट को थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर पीसेस में भी अगर आप डिवाइड करते हैं तो उन थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर पीसेस के अंदर atoms will align themselves in such a way that there exists a north and a south
pole on each piece. तो keep in mind कि हमारे पास जब भी मैग्नेट होगा उसके ऊपर दोनों पोल्स होंगे. सिंगल नॉर्थ या सिंगल साउथ कैन नॉट एग्जिस्ट. Now moving on towards our next point, and the next point hopefully कि मैग्नेटिक पोल्स आपको क्लियर हो गए होंगे. अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे मैग्नेट्स का बिहेवियर, मैग्नेट क्या है और कैसे मैग्नेटिक फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं. हमारे पास यहाँ पर हमने अभी बात कर ली, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया कि अगर आप 2 बार मैग्नेट्स लेते हैं तो 2 बार मैग्नेट्स के अंदर आपके पास अगर आपने उसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह से रखी हुई है जैसे कि आपको दिखाया गया है, तो क्या होगा, आपके पास जो अनलाइक पोल्स हैं दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. और यहाँ पर डायग्राम में भी ये क्लियरली नज़र आ रहा है. और अगर आपके पास क्या है, आपके पास अगर लाइक पोल्स हैं तो लाइक पोल्स विल रिपेल ईच अदर. वी हैव ऑल्सो नोन दिस फैक्ट फ्रॉम आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर. नाउ मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स. ये बात हम ऑलरेडी कर आए हैं कि आप कभी भी मैग्नेटिक पोल को जो है वो आइसोलेट नहीं कर सकते. अगर आप एक मैग्नेट को पीसेस में तोड़ते हैं तो हर पीस के ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल खुद ब खुद फॉर्म हो जाता है. अब आपके पास क्या है, अगर आपके पास एक अदद परमानेंट मैग्नेट है तो इस परमानेंट मैग्नेट को आप किस तरह प्रोड्यूस करते हैं. तो इसकी प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, एक आयरन का पीस लेते हैं एंड दैट आयरन पीस कैन बी मैग्नेटाइज्ड बाय प्लेसिंग इट विद अ परमानेंट मैग्नेट. बहुत से बच्चों ने बचपन में ये एक्सपेरिमेंट किया होगा और उन्होंने ये काम किया होगा कि लोहे के टुकड़े को मैग्नेट के साथ चिपका कर कुछ दिन के लिए छोड़ दिया होगा. और उसके बाद क्या होता है कि आप क्या करते हैं, उस लोहे के टुकड़े को उतारते हैं. अगर आप ओवरनाइट उसको छोड़ते हैं या फॉर 1 डे आप उसको छोड़ते हैं, फॉर 24 आवर्स आप उसको छोड़ें या आप 48 आवर्स के लिए उसको छोड़ देते हैं एक परमानेंट मैग्नेट के साथ लोहे के कील को चिपका कर 48 आवर्स के लिए आपने छोड़ा. और उन 48 आवर्स के बाद आपने जब उस लोहे के कील को उस मैग्नेट से उतारा और मैग्नेट से उतारने के बाद आपने उसको अपने किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप टच करेंगे तो वो वहाँ पर चिपक जाता है. तो बेसिकली हमने क्या किया, एक नॉन मैग्नेटिक पीस को परमानेंट मैग्नेट के साथ रखते हुए उसको हमने मैग्नेट बना लिया. ठीक है जी. और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसको परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास कोई परमानेंट मैग्नेट है तो आप उसको नॉन मैग्नेट भी बना सकते हैं. अब मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा है वो प्रोसेस भी हम देखते हैं कि मैग्नेट का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है. और एक नॉन मैग्नेट का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम फर्दर आगे जाके डिस्कस करेंगे. लेकिन अब ये जो मैग्नेट है ये नॉन मैग्नेट किस तरह बनाया जा सकता है, इसको आप सिंपल 2 चीज़ों से के थ्रू कर सकते हैं. या तो आप क्या करें, मैग्नेट को, उस मटेरियल को, उस मैग्नेट को इतना ज़्यादा हीट करें कि उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाए. और अगर वो डिस्टर्ब, या फिर आप उसको क्या करें, उसको उसके ऊपर हैमरिंग करें, उसको हथौड़े के साथ चोट लगाएं और इतनी ज़्यादा चोट लगाएं कि उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाए. तो ऐसी सूरत में आपका जो परमानेंट मैग्नेट था वो आप उसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, उसको अनमैग्नेटाइज कर सकते हैं. मैग्नेट विल लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आफ्टर हैमरिंग और आफ्टर प्लेसिंग इट इन द हीट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. अच्छा जी. अब मैग्नेट्स जो हैं हमारे पास, अब मैग्नेटिक मटेरियल्स, हमने कुछ बातें पहले से, कुछ ऑब्जर्वेशंस बचपन से सब करते आ रहे हैं. और वो ऑब्जर्वेशन क्या होती है, कुछ मैग्नेट्स आपके पास ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ मैग्नेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते. तो कुछ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बेसिकली द amount of force of attraction or repulsion provided by a magnet is the factor
which helps to determine whether the magnet is a strong magnet or is not a strong magnet. तो जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक मैग्नेट आपके पास लगा रहा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है आपके पास, उसकी अमाउंट जो है वो बेसिकली आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहलाती है. उसको हम टेस्ला उसका यूनिट होता है, यूजुअली हम उसको टेस्ला में लेते हैं और उसको हम बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. ये भी बातें हम आगे जाके अपनी स्लाइड्स में फर्दर डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पर अब आपने अभी बात की कि आप मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना चाह रहे हैं, आप मैग्नेट के अंदर से उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कम करना चाह रहे हैं. अगर आप एक मैग्नेट के अंदर से उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को, एबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास दो क्लासिफिकेशंस हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स की. एक क्लासिफिकेशन कहलाती है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स और दूसरी क्लासिफिकेशन कहलाती है आपके पास हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल. इट्स क्लियर फ्रॉम द नेम. सॉफ्ट का मतलब है ईजी टू मैग्नेटाइज एंड ईजी टू डीमैग्नेटाइज. एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जिसको आप बहुत आसानी से मैग्नेटाइज कर सकते हैं और जिसको आप बहुत आसानी से डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है. और एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जिसको आप बहुत आसानी से मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं, वो आपके पास हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है. अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ लिया, मैग्नेटिक पोल के बारे में बात कर ली. वी हैव डिस्कस्ड द मैग्नेटिक फोर्स. नाउ व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड? वी हैव ऑलरेडी नोन. जैसे कि आपके पास क्या है, जैसे कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास अगर कोई चार्ज है तो उसके सराउंडिंग जो रीजन है, वो रीजन ऑफ स्पेस जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है. सिमिलरली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, एक रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट where any object feels the magnetic force of attraction or magnetic force of repulsion. That region of space is known as magnetic field. The shape of magnetic field is revealed by, सिमिलरली जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैप अगर आप बना देते हैं, पिक्चर की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो आपके पास क्या आ जाती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाती हैं. सिमिलरली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का मैप बनाना चाहते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी. हमने लास्ट टाइम बात की थी कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और दैट एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज. यहाँ पर क्या है, आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स फील्ड लाइंस आप बनाना चाहेंगे, दोज फील्ड लाइंस will start from the North Pole and will end at South Pole. अब बात आती है कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या है. तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली मैंने आपको बता दिया, हाउ स्ट्रॉन्ग अ फील्ड एट एनी पॉइंट in the certain region is known as magnetic field strength. और magnetic field strength का जो यूनिट है आपके पास, वो हमारे पास आता है टेस्ला. नाउ आपके पास कन्वेंशंस होती हैं कुछ. डेफिनेटली हम लोग रिप्रेजेंटेशंस जब भी करते हैं तो रिप्रेजेंटेशंस के लिए हमारे पास कुछ कन्वेंशंस होती हैं. आप कन्वेंशन ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं कि आपने देखा हुआ है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या कन्वेंशंस होंगी. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मैंने अभी आपको बताया, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय बी. और अगर आपके पास क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर वो इन द प्लेन ऑफ द पेपर ट्रैवल कर रही हैं आपके पास, तो आपके पास क्या होगा, आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे एरो के साथ. अगर वो क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं इन टू द प्लेन ऑफ पेपर, तो उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे. और अगर वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आ रही हैं तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. ये जो कन्वेंशंस हमारे पास हैं, ये हम लोग उसको अकॉर्डिंग, अगर आप पिक्चर में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं ऑन पेपर अपनी मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये कन्वेंशंस इसलिए होंगी क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिज्म यूजुअली जो है, हम लोग बार मैग्नेट से, हॉर्सशू मैग्नेट से,
रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली दैट इज़ अ फिनोमेना इन द 3 डायमेंशंस। अगर हम उसको 2 डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कन्वेंशंस लेते हैं, एंड दीज आर आवर कन्वेंशंस। अच्छा जी, अब डिफरेंस क्या आता है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। सबसे पहले तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लेना है, और वो हमारे पास क्या था, F इज़ इक्वल टू क्यू ई। इसको अगर हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते तो आपको याद होगा ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ यूँ बना था, E इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एफ। यही फॉर्मूला था आपके पास। तो अब आपके पास अगर मैग्नेटिक फ़ोर्स आपने निकालनी है तो मैग्नेटिक फ़ोर्स का जो फॉर्मूला है ये हमारे पास आता है क्यू वी क्रॉस वी। ये फॉर्मूला हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके हम इसको निकालेंगे। और ये बात ऑब्ज़र्व की गई थी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज मस्ट बी मूविंग, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मूव करना लाजमी नहीं है। और इसके अलावा क्या डिफरेंसेस हैं फर्दर हमारे पास, अ मूविंग चार्ज कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, अ मूविंग चार्ज इज एक्टेड अपॉन बाय द मैग्नेटिक फील्ड। इन द मैग्नेटिज्म आपके पास जो चीज़ें हैं they must move. In electric field, forces and the field can be created by stationary charge. तो यहाँ से ये जो सारी स्लाइड पर हमने बात की है, यहाँ से हम एक ही पॉइंट डिड्यूस कर सकते हैं, और वो पॉइंट डिड्यूस कर ये है कि आपके पास वो डिडक्शन ये है कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है that is only created by the motion of the charge, and the electric field can be created whether by the motion of the charge or whether the charge is stationary. अब ये जो आपके पास पेज यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इज़ अ मैप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय अ सिंगल बार मैग्नेट। आपके पास ये जो सिंगल बार मैग्नेट है, हमने इसको कहाँ प्लेस किया है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्केच किस तरह से बना है, इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया है। हमने ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी शायद आपको याद हो, डिस्कस किया होगा कि अगर आप आयरन डस्ट लेते हैं, आयरन डस्ट को हम उर्दू में कहेंगे लोहे का बूरा। लोहे का बूरा बेसिकली क्या है कि आपने क्या किया, लोहे का एक पीस लिया और उसको इस कदर बारीक टुकड़े उसके किए हैं कि वो आपके पास जो है वो डस्ट पार्टिकल्स की तरह से बन गया है। अगर आपके पास लोहे के पार्टिकल्स, आपके पास इतने पार्टिकल्स इस साइज़ के हैं कि वो डस्ट पार्टिकल्स कहलाते हैं, तो उसको हम आयरन डस्ट का नाम देते हैं। अब ये जो आयरन डस्ट है, हमने क्या किया, इसको एक अदद ग्लास की प्लेट के नीचे रखा। एक अदद ग्लास का हमने कंटेनर बनाया, और वो ग्लास कंटेनर जो है वो हमारे पास, उस ग्लास कंटेनर के अंदर हम लोगों ने आयरन डस्ट को डाला, और उस ग्लास कंटेनर के ऊपर अपना ये बार मैग्नेट प्लेस किया। तो ये जो आयरन डस्ट थी ये ऑटोमेटिकली इस शेप में आ गई, और ये शेप बेसिकली क्या है, ये शेप आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एनालाइज करने का एक और तरीका भी है हमारे पास, और वो तरीका क्या है कि आप एक अदद पेपर लें, उस पेपर के ऊपर आप अपना बार मैग्नेट रखें, और बार मैग्नेट के रखने के बाद आप क्या करें, आप डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर कंपास नीडल्स को रखें। अब ये जो कंपास नीडल है बेसिकली ये क्या है, ये भी आपके पास एक अदद छोटा सा मैग्नेट, एक अदद ऐसा कंपोनेंट है जो कि प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को आपके पास शो करता है। और प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के अलावा जो कंपास हैं, यूजुअली आप लोगों ने एनालाइज किया होगा कि दीज कंपासेस कैन बी यूज्ड to direct you if you are lost in somewhere in the middle of the jungle or in the middle of a desert. तो आपके पास कंपास होती है, कंपास विल टेल कि किस तरफ नॉर्थ पोल है, किस तरफ साउथ पोल है, और ये पाथ को आपके डिटरमिन करती है। तो अगर आपने एक तरफ पेज रखा और पेज के ऊपर आपने एक बार मैग्नेट रखा, और बार मैग्नेट रखने के बाद उसके ऊपर आपने कंपास को रखा, तो आप पेंसिल की मदद से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्केच कर सकते हैं। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि मल्टीपल कंपासेस रख कर बार मैग्नेट के साथ उसने अलाइनमेंट देखी है कि किस तरफ को नीडल जा रही है। नीडल जिस तरफ को जा रही है उस तरफ को वो आपके पास डायरेक्शन, ये यहाँ पर आपके पास
वहाँ से वो जो फर्स्ट डायग्राम हमने देखी है उसी डायग्राम का ये सेकंड पार्ट आप कह सकते हैं इसको, कि इसमें इसने क्या किया है कि नीडल्स को, कंपास को हटा दिया और पेंसिल से उसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्केच कर लिया है। ये सिंगल बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, लेकिन अगर आप एक अदर हॉर्स शू मैग्नेट लेते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफरेंट आती हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड्स आर कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये तो बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। सिंस मोशन इज़ रिलेटिव सो आर द मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो परमानेंटली मूव नहीं, हम यहाँ बार मैग्नेट की या हॉर्स शू मैग्नेट की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे हैं। और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस हमने कहा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर आपके पास किसी जगह पर किसी तार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है तो मोशन इज़ रिलेटिव, सो वी कैन से द मैग्नेटिक फील्ड इज़ रिलेटिव। अगर आपके पास तार के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते जा रहे हैं, सो यू कैन से देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। लेकिन अगर आपके पास क्या होगा, charges will stop, if charges stops moving then there will be no magnetic field. Magnets at rest consist of charges in motion। अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली परमानेंट मैग्नेट्स की। पहले पॉइंट में हमने बात की मूविंग इलेक्ट्रिसिटी की और फ्लक्चुएटिंग या फिर आप कह सकते हैं कि मूविंग मैग्नेटिक फील्ड्स की। लेकिन और ये जो प्रोसेस है, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये हमारे पास डील करता है स्पेशल ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को जिसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा जी, अब जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर वो बात कर रहा है आपके पास परमानेंट मैग्नेट्स की, जिनकी एग्जांपल्स हमने अभी पढ़ ली हैं, हॉर्सशू मैग्नेट, बार मैग्नेट। तो आपके पास अगर परमानेंट मैग्नेट है उसके अंदर क्या है, मैग्नेट्स एट रेस्ट कंसिस्ट ऑफ चार्जेस इन मोशन। आपके पास ये कहाँ से चार्जेस इन मोशन आ रहे हैं, ये बेसिकली मैग्नेट्स यूजुअली आर मेटल्स, और मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। These free electrons, each single electron will behave as a tiny magnet। और जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेसिकली स्पिनिंग इन द सेम डायरेक्शन प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है जैसे हमने बात की, तो आपके पास ये जो बार मैग्नेट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा हम इसको लार्ज कर लेते हैं, आपके पास ये एक अदद बार मैग्नेट है, ठीक है जी। और इस बार मैग्नेट का ये हमारे पास है नॉर्थ एंड ये आपके पास है साउथ। तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को मैं यहाँ पे एरो से रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। अगर नॉर्थ पोल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और तीनों इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और साउथ पोल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और तीनों आपके पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या है, ये मैग्नेट एक अच्छा मैग्नेट कंसीडर किया जाता है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। लेकिन अगर क्या है, नॉर्थ पोल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और साउथ पोल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके पास इस मैग्नेट की एबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं कि वो कितना अच्छा मैग्नेट है, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। नाउ अब आपके पास क्या है, डेफिनेटली आपके पास जो एटम्स हैं ये सारे के सारे तो एक जैसे नहीं, एक तरह से बिहेव नहीं कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में बिहेव नहीं कर रहे। तो क्लस्टर्स ऑफ एटम्स जो हैं जिनकी एक डायरेक्शन में मूवमेंट है, वो एटम्स का क्लस्टर जो है आपके पास, उसको हम मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं। एक मैग्नेटिक मटेरियल है आपके पास, और उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या है, आपके पास एटम्स हैं, एटम्स के क्लस्टर्स बने हुए हैं, और ये जो क्लस्टर्स ऑफ एटम्स हैं, ये क्लस्टर ऑफ एटम्स क्या शो कर, इस क्लस्टर ऑफ एटम में अगर यहाँ पर एक आप लेते हैं, कंसिडर करते हैं हम अपना ये वाला पोर्शन,
इस पोर्शन के अंदर कि अगर आपके पास यहाँ पर 10 एटम्स मौजूद हैं और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या हुआ, ये रीजन ऑफ स्पेस जो है, ये रीजन ऑफ एटम्स जो है, ये कहलाएगा एक अदद मैग्नेटिक डोमेन। सिमिलरली एक और रीजन है, साथ वाला रीजन अगर हम कंसिडर करते हैं तो इस रीजन के अंदर हमारे पास जो एटम्स जिस डायरेक्शन, एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, वो डायरेक्शन जो है आपके पास वो ऑपोजिट टू दिस है। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी इस रीजन के अंदर जो डोमेन की अलाइनमेंट है उसको कहेंगे कि वो आपके पास डिफरेंट है एज़ कंपेयर टू द फर्स्ट रीजन। तो सिंपली जनरली अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपके पास रीजन्स ऑफ स्पेस हैं, रीजन्स या फिर रीजन्स ऑफ अलाइंड एटम्स हैं, ये रीजन्स आपके पास मैग्नेटिक डोमेन्स कहलाती हैं। अब अगर एक आपके पास अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो उस अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर किस तरह से होगा, हम आयरन की एग्जांपल ले रहे हैं। और आयरन में क्या है, आयरन में आपके पास अगर हम जाएं, यहाँ पीछे जाते हैं, तो आयरन के अंदर आपके पास अगर अनमैग्नेटाइज्ड आयरन है तो जितनी भी आपके पास मैग्नेटिक डोमेन्स हैं, ये जो एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली ये मल्टीपल एटम्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मल्टीपल एटम्स की के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो आपके पास अनमैग्नेटाइज्ड आयरन है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो एरोज़ हैं, जो डोमेन्स हैं, उनकी डायरेक्शंस रैंडम है। लेकिन अगर आप ये स्लाइटली मैग्नेटाइज्ड आयरन की बात करते हैं तो इसमें कुछ डोमेन्स आपके पास जो हैं वो अलाइन हो रही हैं, और अलाइनमेंट के लिए आप देख रहे हैं फ्रॉम साउथ स्टार्ट कर रही हैं और टूवर्ड्स नॉर्थ ये अलाइन हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्या नीचे आप देख रहे हैं, नीचे आपने देखा कि आपके पास क्या हुआ, जितनी भी डोमेन्स थी सारी की सारी वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो गई। अगर ये सारी की सारी एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं तो अब आपका जो बिहेवियर है इसी आयरन का, अब इस आयरन का बिहेवियर जो है ये क्या हो गया है, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा एक अदद स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। और अगर मैं क्या करती हूँ, इस बार मैग्नेट, इस आयरन के पीस को, इस आयरन की स्ट्रिप को दो हिस्सों में डिवाइड भी कर देते हैं तो द डोमेन्स विल रिमेन अलाइन। और डोमेन्स अगर अलाइन रहेंगी तो डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, आपका एक अदद नॉर्थ और एक अदद साउथ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। Now, if the magnetic domains of the material can align, तो इस मटेरियल अगर ये अपनी डोमेन की अलाइनमेंट जो चेंज कर सकता है मैग्नेटिक मटेरियल, तो इसको ख़ास नाम दिया गया है, और वो नाम दिया गया है, इस ऐसे मटेरियल को कहते हैं हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स विच कैन अलाइन देमसेल्व्स। अब परमानेंट मैग्नेट्स जो हैं उसको हम किस तरह से प्लेस करते हैं, उसको हम किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, तो वही बात हमने पहले पढ़ ली है, पहले भी ये बात कर चुके हैं हम कि परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड बाय प्लेसिंग मटेरियल इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन ऑर्डर टू अलाइन देयर डोमेन्स। हमने वो कील की एग्जांपल, हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कील की एग्जांपल दी। वो कील थोड़ी देर के लिए तो मैग्नेट रहता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो जितनी देर के लिए वो मैग्नेट रहता है, बेसिकली क्या था, उसके अंदर की जितनी डोमेन्स थी वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उस डायरेक्शन में अलाइन हो गई थी। इट इज़ पॉसिबल टू वीकन अ मैग्नेट बाय ड्रॉपिंग और हीटिंग इट। इसको आप क्या कर सकते हैं, वही बात जो हमने ऑलरेडी की है, अब यहाँ पे हमने इन टर्म्स ऑफ डोमेन्स भी बात कर लेते हैं। तो पहले भी हमने कहा कि अगर हम हीट कर लें या उसके ऊपर उसको हैमरिंग कर लें तो वो जो परमानेंट मैग्नेट था वो आपके पास क्या हो सकता है, वीक मैग्नेट भी हो सकता है, और वो टोटली डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ अंदर क्या हो रहा होता है, उस मेटेलिक उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ क्या हो रहा होता है, तो उसकी डोमेन्स जो हैं वो अलाइनमेंट से हटा दी जाती हैं।